Okay, let's we start with our chapter number 2 from where we have stopped. That on the from the page number uh, 36. Chapter number 2, page number 36, topic number 2.4.3 means seed. Look, we have studied the fertilization that is called is the known as the double fertilization. After the fertilization, whatever ovule is there, that inside that ovule development of embryo, due to the development of the embryo, that ovule is now known as the seed. In complete ovary, that ovary is now known as the fruit. Means look what happened actually here. Student confused. Why they confused still I don't know. In many points I don't know why they get confused. In some simple logic, look, this is the ovary. Inside this ovary, this is the ovule. In this ovule, we have studied this. What happen? This ovule, when it is fertilized and development of embryo take place, due to the development of the embryo, this complete ovule turns into seed. ये ओव्यूल का क्या बन गया? सीड बन गया. तो ये जो पूरा था, what is the outside this wall, complete ovary wall, that turns into fruit wall, means fruit. Simple. जहाँ तक until that fertilization does not take place, this ovule is known as the ovule. But fertilized ovule as well as the development of embryo leads to form the seed, and this ovary turns into the fruit. So here look, seed. In angiosperm, the seed is the final product of the sexual reproduction. Highlights final product of the sexual reproduction. Why it is called as the final product of the sexual reproduction? As we have studied that for the sexual reproduction, development of male gametophyte, then development of female gametophyte, then after male gametophyte transformation of the male gametophyte means what? Male gamete, transfer of the male gamete through the male gametophyte, that is known as the pollination. Pollination then fertilization then embryo development. These all are the process of the sexual reproduction. In this sexual reproduction, when that embryo development, embryogenesis take place, that ovule turns into the seed. Means now this process stop. Why stop? Because now we can sow that seed. As we sow, it will germinate and new plant will be developed. Means final product of the sexual reproduction is what? Seed. It is the often described as fertilized ovule. Highlight karo, fertilized ovule and final product of sexual reproduction. Seeds are formed inside fruits. अभी तो explain किया था. Seeds are formed inside the food. Why inside the fruits? The simple, because ovule it turns into the seed. This seed, तो ये सब क्या बना? Fruit बना. A seed typically consists of seed coat, cotyledons, and the embryo axis. Look here. Now we consider this once again. What happened here in this seed? So look, this is the now look this. Look, this was the completely what? Ovule. So look here. I am representing this ovule here. In this ovule, here embryo sac. Cotyledon, on the development of that cotyledon.
This complete is the एक्सिस एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोटलीडोन। तो देखो ये जो बना एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोटलीडोन, अटैचमेंट ऑफ दिस कोटलीडन जस्ट अबव फ्रॉम इट एम्ब्रियो एक्सिस एपिकोटाइल, दिस इज द हाइपोकोटाइल एंड दिस ओव्यूल के जो कवर थे दैट इज, ये सीड बन गया पूरा, तो अभी ये सीड कॉट बन जाएगा। देखो इसके लिए पूरा स्ट्रक्चर तुमको एकदम क्लियरली आना चाहिए, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता वहाँ तक तुमको कुछ समझ में नहीं आएगी। बोलो आउटर इंट्यूबमेंट एंड इनर इंट्यूबमेंट कहाँ पे लिखा था? यस, ऑन द पेज नंबर 25 व्हेन यू सी द फिगर द ओव्यूल, ओव्यूल की देखो फिगर अपने दी है, वो ओव्यूल की फिगर में आउटर टू कवरिंग जो दी है दैट इज द इनर इंट्यूगमेंट एंड आउटर इंट्यूगमेंट। तो वो जो इंट्यूगमेंट थे वो किसके थे? इंट्यूगमेंट ओव्यूल के थे। अब ये ओव्यूल रहा ही नहीं तो वो कवरिंग किसका हो गया? सीड का, बिकॉज ओव्यूल टर्न्स इनटू सीड, सो दीज आर द कवरिंग फॉर द सीड, सो दीज आर कॉल्ड द सीड कोट। And inner this is the embryo axis, this hypocotyle, epicotyle, cotyledon, maybe two cotyledon, maybe single cotyledon. The cotyledons of the embryo are simple structure, generally thick and swollen due to the storage of food reserves as in legumes. बोलो ये मैंने जो cotyledon था ऐसा swollen और ऐसा आपने ड्रॉ करा। Why they are the swollen in this? Because they contain the reserve food material as in leguminous. Mature seed may be non-albuminous or ex-albuminous. Non-albuminous seed have no residual endosperm as it is completely consumed during the embryo development. बोलो क्या होता है? Ex-albuminous, non-albuminous मीन्स क्या होता है? इसमें हमने जो ये यहाँ पे डेवलपमेंट डबल फर्टिलाइजेशन से सीखा था, बोलो डबल फर्टिलाइजेशन what happened? This turns into the zygote. And here endosperm, free nuclear war. This endosperm is utilized for the products for the development of this embryo, zygote में से embryo बनने के लिए. If this all food is consumed, endosperm, no remains of the endosperm, that is known as the non-endospermic. So look here, non-albuminous, non-endospermic albuminous seed have no residual endosperm. It is completely consumed during the embryo development. Example, pea and groundnut. Highlight करो non-albuminous, non-endospermic. Albuminous seed retain part of the endosperm as it is not completely used up during the embryo development. Example, wheat, maize, barley, castor. अब बोलो यहाँ का जो एंडोस्पर्म था वो थोड़ा बहुत यूज हुआ एंड सम ऑफ द पार्ट रिमेन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, इवन इट इज प्रेजेंट इन द सीड, इट इज नोन एज अल्ब्यूमिनियस। तो देखो अल्ब्यूमिनियस नॉन अल्ब्यूमिनियस दोनों के सामने ऐसा टिक करो एंड बाय कीपिंग दिस ब्रैकेट टिक मार्क राइट डिफरेंस. Look, when it is asked the albuminous and non-albuminous student write that non-albuminous it does not have the endosperm. ऐसा नहीं, endosperm था but वो retain नहीं है, it is all consumed during the embryogenesis. And albuminous में क्या है? Present है, कौन सा? वही जो endosperm था वो endosperm पूरा consume नहीं हुआ, थोड़ा सीड में रह गया. Albuminous seed retain part of the endosperm. It is not completely used during the embryo development. Occasionally, in some seeds, such as black pepper and beet, remains of the nucellus are also persist. Nucellus. ये जो यहाँ का पूरा पार्ट था, ये न्यूसेलस, ये जो पार्ट था, बोलो क्या हुआ था इसमें? फिर से समझो. स्टूडेंट को तकलीफ यहीं से है कि वो स्ट्रक्चर नहीं समझते हैंगे. स्ट्रक्चर समझने में बहुत उनकी भूल होती है. उसके लिए बोलो ये सब क्या था? न्यूसेलस.
दिस वॉज द न्यूसेलस। फ्रॉम हियर ये न्यूसेलस में से क्या हुआ, दैट वन सेल बिकम एक्टिव मेगास्पोर मदर सेल, और वो मेगास्पोर मदर सेल का डिवीजन हुआ और यहाँ से ये बना, तो ये अपना पूरा क्या बना, एम्ब्रियो सेक। तो ये जो दूसरे सब सेल थे वो सेल डिजनरेट हुए, बट ड्यू टू द सम रीजन सम ऑफ द सेल रिमेन्स, तो क्या क्या रह गया, न्यूसेलस रह गया, जो सब खलास हो जाते डीजनरेट होकर निकल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट क्या हुआ, ये न्यूसेलस का थोड़ा पार्ट रह गया, इनएक्टिव रहेगा। दिस रेसिडुअल पर्सिड न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। हाईलाइट करो पेरिस्पर्म। इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल्स हार्डन इज टफ प्रोटेक्टिव सीट कोट्स। बोलो ये जो था इंटेग्यूमेंट दोनों, अभी हाँ ये सीट कोट हमने लिखा, ये दोनों इंटेग्यूमेंट थे वो कैसे बन गए, हार्ड बन गए। हार्ड बने तो वो सीट कोट, जहाँ तक हार्ड नहीं थे वो इंटेग्यूमेंट थे, जहाँ तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये और ये सब डेवलपमेंट एक साथ में स्टार्ट होता है, एक साथ में मोस्ट ऑफ ओवर कंप्लीट होता है। सो व्हाट हैपन, जहाँ तक ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ वहाँ तक ये इंटेग्यूमेंट इट इज आल्सो टर्न इनटू हार्ड टफ। तो अब वो बोलो दिस पार्ट टर्न्स इनटू सीड, सो दिस पार्ट इंटेग्यूमेंट टर्न्स इनटू सीड कोड। ये एम्ब्रियो बन गया अंदर का, तो यहाँ पे वो सीड कोड हार्ड बन गया। The micropyle remains is a small pore on the seed coat. This facilitates the entry oxygen and water to seed during the germination. बोलो अब ये जो है, बोलो ये जो माइक्रोपाइल था कहाँ गया, ये एरिया। दिस माइक्रोपाइल ऐसा के ऐसा ही रहेगा, बट वो किस पे पोर हो गया, सीड पे बन गया। और हाँ उससे अपना व्हाट इज द बेनिफिट, बोलो ये पूरा सीड हो गया है। सीड पे बोलो यहाँ पे ये माइक्रोपाइल है। व्हेन वी सो दिस सीड, बोलो सीड में ऐसा ये माइक्रोपाइल का पोर रहेगा। व्हेन इट हैज़ द एप्रोप्रिएट, उसके लिए जरूरी टेम्परेचर, required temperature and that all facilities is available, water and oxygen easily enter through this one. As he enter inside, तो यहाँ के एम्ब्रियो को वाटर मिलेगा, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट मिलेगा, सो इट टर्न्स इनटू द इट विल स्टार्ट जर्मिनेशन। As the seed matures, its water content is reduced and seed becomes relatively dry, 10 to 15% of moisture by mass. Highlight करो seed में कितना water होता है, 10 to 15%. And this only moisture, it is not in the free water form. The general metabolic activity of the embryo slows down. और एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कैसे होती है, स्लो डाउन हो जाती है। The embryo may enter as a state of inactivity called dormancy. हाईलाइट करो, हार्ड तो दिया है बट डार्क तो दिया है, बस उसको हाईलाइट करो, बाजू क्वेश्चन मार्क कर दो, डोरमेंसी। और इफ फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। हाईलाइट करो कौन से उसके 3 मेन फेवरेबल कंडीशन, एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, दे जर्मिनेट। बोलो अगर जो उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ये सब डेवलपमेंट हो गया, ये सीड आ गया, सीड के बाहर फ्रूट भी है, चलो फ्रूट में से भी ये सीड रिलीज हो गया, आफ्टर रिलीज ये यहाँ पे गिरा बट उसको मॉइस्चर नहीं है, ऑल द 3 फैक्टर्स शुड बी सेटिस्फाइड। अगर उसमें से कुछ भी एक सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। दैट इनएक्टिव स्टेज इज कॉल्ड एज अ डोरमेंसी। बट व्हेन एप्रोप्रिएट कंडीशन, ऑल मॉइस्चर, टेम्परेचर as well as oxygen, this whole thing is available, then this embryo will become active. Until and unless वो एक्टिव होता नहीं है, वो एक्टिव नहीं होता, that's why it is called as a dormant। जब ये एक्टिव होगा तो इसमें से फिर वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। As ovules mature into seed, the ovary develops into the fruit. That is the transformation of the ovules into seed and ovule into the fruit proceeds simultaneously. सब simultaneously होता है। बोलो पूरा यहाँ पे अंदर ये seed development start होता है, means embryogenesis start होता है, तो seed हम बोल रहे हैं seed development start हुआ। The meaning of the embryogenesis itself is the development of the seed.
अगर हाँ एग्जाम में आ सकता है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ सीड, सो व्हाट, तुम तो आगे बोलोगे सर डेवलपमेंट ऑफ सीड तो हमको दिया ही नहीं, दिया हैगा एम्ब्रियोजेनेसिस इज द सेम डेवलपमेंट ऑफ द सीड, व्हेन दिस एम्ब्रियो डेवलप इट इज कॉल्ड एज द सीड, सो एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो सीड डेवलपमेंट है, सीड डेवलपमेंट होता है तो इंट्यूगमेंट सीड कोट बनता है, और वही टाइम पे जो ओवरी है वो ओवरी काय में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में, मिस यहाँ पे फ्रूट बन रहा है, अंदर सीड बन रहा है, सीड के ऊपर जो इंटीग्मेंट है वो सीड कोट बन रहेगा, अंदर का जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, जब एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो एम्ब्रियो उस वो टाइम पे इसको बोलेंगे सीड, आफ्टर कवरिंग को बोलेंगे सीड कोट, और ओवरी को बोलेंगे फ्रूट। ओवरी फ्रूट प्रोसेस है, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ द फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प, हाईलाइट करो पेरिकार्प, देखो उसके ऊपर पेरिस्पर्म and pericarp. Once it was asked, what is the difference between the perisperm? Remains of the nucellus. Even after the development of the seed, means inside the seed, if the part of the nucellus due to the some reason it persists, it is known as a perisperm. And if and when ovary develop, the development of ovary leads to the development of the fruit. That fruit wall is known as a pericarp. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc., or may be dry as in groundnut, mustard, etc. Many fruits have evolved mechanism to dispersal of seed. बोलो फ्रूट का ही ऐसा कुछ होता है कि उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि फ्रूट ड्यू टू दैट फ्रूट सीड ही डिस्पर्स हो जाता है, दूसरी जगह पे चला जाता है। और फॉर दिस फ्रूट एंड सीड यू हैव टू रिफर द 11th स्टैंडर्ड चैप्टर। Recall the classification of the fruits and the dispersal mechanism that you have studied in the earlier class. 11th standard का पूरा आना चाहिए, ये रिफर से ये जो ये बोर्ड में तुमको नहीं, बट इन द गुजकेट एंड द नीट एग्जाम। Is there any relationship between number of the ovules in ovary? Yes. Whatever number of the ovules will be there, उसमें से जितने फर्टिलाइज होंगे इतने सीड बनेंगे। And the number of the seeds present in a fruit, yes, ये सब पूरा कनेक्टेड है। एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल, उसमें 15 ओव्यूल्स है तो 15 सीड बनेंगे एक फ्रूट में। In most plants, by the time of the fruit development from the ovary, other floral part degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew, etc., the thalamus also contributes to the fruit formation. Such fruits are called false fruit. अब देखो यहाँ पे थैलेमस और ये दिस वो जो भी सेपल्स ने पेटल्स ने सब अभी ड्रॉ नहीं करता इतना। What happen? This turns into seed. This turned into pericarp. मीन्स क्या? बोलो पेरिकार्प यानी क्या? फ्रूट कवरिंग। अब जनरली क्या होता है, दिस ऑल ये ऐसा हो जाता है। Once again, look, in most the plant, the time of the fruit development, the ovary and other flower plant degenerate and fall off. सब चला गया यहाँ से, वो सब एंड ये वो सब कुछ चला गया। बट इन केस ऑफ द चलो ये ओव्यूल, इनको सो एपल एंड दिस ऑल व्हाट हैपन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एट दिस टर्न्स इनटू सीड, दिस टर्न्स इनटू पेरिकार्प, ये सब फॉल ऑफ हुआ ने। अब बोलो क्या हुआ, ये सीड का डेवलपमेंट होता है। एट दैट टाइम दिस पेरिकार्प ऑल्सो डेवलप। द डेवलपमेंट ऑफ द पेरिकार्प ड्यू टू द सम हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स। नहीं तो बोलो फ्लावर इतना ही रहता है, उसकी ओवरी इतनी अपने रहती है, तो बोलो क्या होगा, हमको फ्रूट इतना ही मिलेगा।
क्या मैंगो इतना होता है मैंगो फ्रूट? नहीं. इफ यू हैव वॉच्ड, इफ यू स्टडी द फ्लावर ऑफ द मैंगो, वो फ्लावर मैंगो इतना ही रहता है. फ्लावर मैंगो का इतना होता है, उसकी ओवरी इतनी सर की होती है. तो क्या मैंगो इतना सर का रहता है? नहीं. क्यों? वाई? जैसे ये अपना हुआ, हमने डेवलपमेंट देखा, उसकी साइज ट्रिमेंडसली बढ़ती है, एबनॉर्मलसली. डिड यू ड्यू टू द सम hormone, plant hormones. Now look what happened in this apple etc. जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है किसका? सीड का और पेरिकार्प का. वो टाइम पे these all part follow, but this thalamus also develop and cover this complete पेरिकार्प, डेवलपिंग पेरिकार्प. और पेरिकार्प को डेवलप होने का स्पेस ही नहीं मिलता है. जो कुछ डेवलप हो जाता है वो थैलेमस हो जाता है. बोलो, तुमने देखा होगा एप्पल में, एप्पल व्हेन वी कट द एप्पल वी हैव दिस शेप. तो यहाँ पे उसका सीड रहता है और सीड के बाजू में ऐसा तो कभी इतना दूसरा पार्ट रहता है. दिस इज द पेरिकार्प एंड सीड. ये एक्चुअल फ्रूट यही है. ये जो पूरा कवरिंग हुआ है, दिस इज व्हाट, दैट इज द थैलेमस. These are called false fruit. Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruit. अगर जो only ovary का ही डेवलपमेंट है तो उसको ने क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रूट. जैसे मैंगो एक्सेट्रा. बोलो क्या हुआ? ये सीड में एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब इसकी साइज भी ट्रिमेंडस इनॉर्मेनसली डेवलप होती है और ये आजू बाजू का जो है वो पेरिकार्प भी बहुत डेवलप था. ये तो मेरी फिगर नहीं उसको सेटिस्फाइड करेगी. नंबर्स ऑफ टाइम, मिलियंस ऑफ टाइम उसके साइज से इतना बड़ा होता है. सो व्हाट, दीज आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट एंड दीज आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. बोलो कैसा हुआ? फ्रूट में क्या हुआ? कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और फ्रूट डेवलपमेंट हो गया. प्लांट में कोई फर्टिलाइजेशन ना, फ्रूट डेवलप हो गया. कैसा? देखो व्हाट हैपन. दिस इज द ओव्यूल, this olpa style, stigma style, and this ovary. Inside the ovary, this is the ovule and that all. Placenta ने वो जो कुछ भी वो सब तो है. Once again I am drawing here, so you can compare it very easily. What happened? Okay, when this pollen grain, pollen tube and this fertilization, so this turn into seed. यहाँ पे नहीं आया, seed नहीं बना. If this turns into seed, what does it mean? Embryo development and इसकी भी size बहुत बड़ी ने, इसकी भी size बहुत increase हुई हो गया. What happened here? No pollen tube, no pollen grain, no pollen tube, no fertilization. The seed remain, ovule remain as it is. Means it does not develop into seed. It does not develop, turns into the seed. What does it mean? उसकी size भी बड़ी नहीं. But due to the some hormonal effect, only this ovary develop. तो बोलो अंदर क्या हुआ? ये पूरा पार्ट जो बना वो क्या बना? पेरिकार्प बन गया. क्या आपने बन गया? वो पूरा पेरिकार्प यानी फ्रूट बन गया. बट अंदर का जो था वो माइन्यूट रह गया. इसके अंदर जो था वो बड़ा हो गया क्योंकि डेवलप हुआ. यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो माइन्यूट रह गया. तो जब हम ऐसा फ्रूट ओपन करके देखेंगे तो हमको सीड दिखेगा ही नहीं, उसके ओव्यूल्स भी नहीं दिखेंगे क्योंकि वो इतना माइन्यूट रहते हैं. In fruits which develop without fertilization, such fruits are called parthenocarpic fruits. Bananas is one such example. Parthenocarpy can be induced through the application of the growth hormones in such fruits are seedless. Seedless बनेंगे. अब बोलो, those farmers and those have this cultivation of this fruit and war, they are the in favor of this. Now look what happened. फिर से देखो क्या होता है. When this fertilization take place, this turns into seed. This ovary turns into the pericarp. What happened? That some hormones, due to effect of the hormones, इसकी साइज भी इंक्रीज होती है और ओवरी की साइज तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है.
What these cultivators are doing there? Before fertilization, somehow, some way, they protect the fertilization, pollination, and they spray artificial plant hormones, plant growth regulators. Those are known as gibberellins and auxins. You have studied in 11th standard. So, due to the effect of the gibberellins and auxin, immediately these start to develop. ये ओव्यूल सीड तो डेवलप हुआ ही नहीं, सीडलेस फ्रूट. सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म. बोलो यहाँ से ये पूरा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स इन एंजियोस्पर्म, ये पूरा क्वेश्चन आता है तो हाईलाइट करो. सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म. यहाँ से ये आंसर स्टार्ट होता है तो इट कंटिन्यू ऑन द पेज नंबर 38, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ. डेड सी लिखा हुआ है फोर्थ पैराग्राफ में. 1 2 3 थर्ड पैराग्राफ ओवर हुआ, वहाँ पे देखो डेड सी है, वहाँ तक आंसर है. और इसमें दूसरा भी आता है एग्रीकल्चर. वो एग्रीकल्चर है, वो ये पेज नंबर 38 पे सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ, वो हम बाद में देख देंगे. पहले पूरा हम आंसर ये देख ले. इट इज ऑफ द 4 मार्क क्वेश्चन. सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स. Firstly, since reproductive process such as pollination, fertilizations are independent of water, seed formation is more dependable. बोलो क्या है? पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन उसमें कुछ वो नहीं है, बट सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल. वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर आता है, सीड बनता है, बिकॉज एम्ब्रियो डेवलप होता है. हाँ, उसके ना बाद में वो वाटर लेवल उसका डाउन जाता है ना, वो डॉर्मन बनता है, थेटल रहता है. ऑल्सो सीड्स है वो बेटर एडेप्टिव strategies for dispersal of the new habitats and help the species to colonize in other areas. Just 2 years ago on the roadside, after this monsoon season, I found that क्या बोलते हो, भांग का प्लांट मैंने देखा. आई सरप्राइज. ये भांग इट इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया कल्टिवेशन. यहाँ पे कैसे आया? फिर मेरे को याद आया कि many years ago when we were studying in the college, our professor explained this whole thing कि जो ये फ्रूट से जो सीड डिस्पर्स होता है, वो डिस्पर्स फ्रूट किलोमीटर्स एंड किलोमीटर तक डिस्पर्सल होता है. एक्चुअली दिस भांग एंड दिस अफीन, दिस ऑल आर कल्टिवेटेड इन दैट एरिया ऑफ द अफगानिस्तान. और उन्होंने वो वहाँ पे अपने बोला था कि हो सकता है कि वो केरला तक भी जाता है ना, श्रीलंका तक भी जाता है. सो मैं पॉसिबल के बोलो वहाँ का जो सीड था वो डिस्पर्स होते होते डॉर्मेंट रह के वो एयर के साथ में कि कोई भी मैकेनिज्म के साथ में डिस्पर्स होते होते वो वडोदरा में आ गया. वडोदरा में आके वो अपने रहा तो उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया. मीन्स वही तो बोला है कि बोलो कहाँ वो अफगानिस्तान एरिया का हैगा और कहाँ पे वो वडोदरा में. कॉलोनाइज इन अदर एरियाज. As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis in their own. बोलो सीड के अंदर जो फूड मटेरियल रिजर्व फूड रहता है तो वो किसके नरिशमेंट के लिए? प्लांट का जर्मिनेशन होके वो डेवलप होगा उसके लिए. The hard seed coat provides protection to the young embryo. बोलो और उसके साथ में जो डेवलप हुआ, बोलो बाहर का सीड कोट, वो अंदर के एम्ब्रियो को क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है. Because we actually are interested in the embryo only. हमारा इंटरेस्ट कहाँ में? एम्ब्रियो में हैगा. और एम्ब्रियो को डैमेज हो जाएगा तो सीड को डैमेज हो जाएगा. सीड का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा. सो सीड कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट. एम्ब्रियो इज देयर. अगर जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट नहीं होगा तो न्यू प्लांट नहीं मरेगा. तो न्यू प्लांट के अंदर सीड कोड का इंपॉर्टेंट है कि वही एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, डेवलपमेंट उससे पॉसिबल होता है. The products of the sexual reproduction, being the products of the sexual reproduction, they generate the new genetic combination leading to the variation. New genetic, क्योंकि एक जीन्स किसके आए? थोड़े बहुत हाफ ऑफ द जीन्स आर फ्रॉम दैट ऑफ द मेल प्लांट. पोलन क्या है ना, हाफ ऑफ द किसके आए? तो फीमेल क्या है. अब देखो मैंने अपने वो बोला, इसमें से अदर 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है. इंपोर्टेंट ऑफ द सीड फॉर द एग्रीकल्चर, इसमें ये सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ यहाँ से अगर जो वो पूरा आया तो फिर एंड तक ही जाना है, 1.5 सी तक. बट एग्रीकल्चर का आएगा तो ये सीड इज बेसिस ऑफ मास से स्टार्ट करके 1.5 सी तक.
इसको भी टिक कर लो। सीड इज द बेसिस ऑफ द एग्रीकल्चर, हाईलाइट करो, वहां पे क्वेश्चन मार्क करो। Dehydration and dormancy of the mature seeds are crucial for storage of the seed, which can be used as a food throughout the year and also raise crop for the next season। बोलो हमारा जो ये सीड बना वो सीड में moisture content, water content is very low, only of the 10 to 15%। so what will be happen? It is called dehydrate water नहीं है तो उसका decomposition नहीं होगा, as well as it also contains the sweet reserve food। so we are eating seeds for what? For our nourishment, wheat, maize, these all seeds we are eating. Why we are eating that? Because they have the reserve food material. Actually that reserve food material is not for us, but it is for development of the embryo and etc, but indirectly it is useful for us, एग्रीकल्चर एज वेल एज। बोलो रिजर्व फूड भी है और उसमें डिहाइड्रेट है तो वो स्टोर होता है, उसके लिए तो हम ईयर एंड ईयर वो बेस ने सबको स्टोर करके हम उसको खा सकते हैं। एज वेल एज ये स्टोर भी होता है तो बोलो नेक्स्ट ईयर उसका क्रॉप भी हम ले सकते हैं, बिकॉज वो स्टोर रहा मीन्स वो कैसा आएगा, डोरमेंट है, हम भी खा सकते हैं। और डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए नेक्स्ट ईयर जब मानसून आएगा, जब आएगा तो उसको हम सो करेंगे। वाइल सोइंग इट व्हाट विल बी हैपन? इट विल स्टार्ट जर्मिनेट। Can you imagine agriculture in the absence of seed? No, it's not possible. Or in the presence of seeds which germinate straight away soon after the formation cannot be stored। बोलो immediately seed formation हुआ ने उसको अपने बोलो germinate होना आएगा ने बोलो क्या आएगा, उसको store नहीं कर सकते तो भी agriculture is not possible। Even our food is not possible। How long do the seeds remain alive after the dispersed? This period again varies greatly। In a few species, the seed lose viability within a few months। वो डोरमेंट रह के ना एक लिविंग फॉर्म में कब तक रहता है, अलाउ कब तक रहता है? फॉर फ्यू मंथ्स, डिपेंड ऑन दैट वेरियस कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। Seeds of a large number of the species live for the several years। लार्ज नंबर मोस्टली तो सेवरल ईयर तक रहता है। Some seeds can be remain alive for the hundreds of years। There are several records of the very old viable seeds। The oldest is that the Lupinus articus। Highlight करो, this is the scientific name। Excavated from the Arctic tundra region है, पूरा स्नो से वो है। वो टुंड्रा रीजन में कुछ वो कर रहे होंगे, डिगिंग करके जो भी उनका कुछ कर रहे होंगे तो दे फाउंड फोसिल्स। वो प्लांट का फोसिल मिला, वो फोसिल को आइडेंटिफाई कर दो, बाजू में उसका सीड भी मिला, वो सीड लिखा तो दे सरप्राइज दैट वाज वाइबल। वो लिविंग फॉर्म में डोरमेंट में था, जब उसको एप्रोप्रिएट कंडीशन दी इट स्टार्ट जर्मिनेट। The seed germination and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy। कितना? Only 10,000 years, ज़्यादा नहीं। A recent record of the 2,000 years old viable seeds of the date palm, खजूर, Phoenix dactylifera, discovered during the archaeological excavation at the King Herod's पैलेस नियर द डेड सी। किंग हेरोड का जो भी पैलेस होगा वो टूट गया, वो सब कुछ चला गया, उसको कुछ करते गए। वो डेड सी जहाँ पे वो है वो तुर्की के कहाँ पे हैगा, वो कहाँ पे वो जो भी कंट्री है, नॉट एग्जैक्ट तुर्की बट सीरिया के वहाँ पे कुछ है। वो डेड सी के बाजू पे वहाँ पे अपने उसको वो करते थे तो क्या हुआ वहाँ पर? वो हेरोड के पैलेस के बाजू में जो कोई कुछ वो ढूंढने गए थे वो तो नहीं मिला, बट उनको पाम के सीड मिले। मिस पाम जब भी वो जो था वो डेट का, पाम का, सबका ये सबका वो करते थे। पाम यानी वही डेट खजूर का ये सब एक ही अपने फैली, उसका हमने कुछ मिला। और भी हमने देखा था वहाँ पे डेट का सीड मिला और उसको उन्होंने शो करा तो वो जर्मिनेट भी हुआ। बोलो डेट पाम खजूर का वो है, उसको हमने उसका साइंटिफिक नेम फोइनिक्स डेक्टालिफेरा।
After completing a brief account of the sexual reproduction of the flowering plants, it would be worth attempting a comprehend an enormous reproduction capacity of the some flowering plants by asking the following question: how many eggs are present in an embryo sac? In one embryo sac, only one egg. How many embryo sacs are present in an ovule? Generally one. ओव्यूल में वन एम्ब्रियो सेक एंड वन एम्ब्रियो सेक में वन एग. हाउ मेनी ओवल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी? यस, इन एन ओवरी नंबर्स ऑफ ओवल्स आर देयर. बोलो, इन एन ओवरी numbers of ovules. As for example, guava, numbers of seeds means that one ovary, it is the numbers of ovule, but every ovule has only one embryo sac and one female gamete, egg. How many flowers are present on a tree? वो तो तुम समझ सकते हो. Can you think some of the plants which fruits contain a very large number of seed? Example orchid. ऐसे तो बहुत है, but यहाँ पे जो दिया है वो हमको स्टडी करना. Orchid fruits are one of the such category, and each fruit contain thousands of tiny seeds. Thousands of tiny seeds. Similarly, in the case of the fruits of the some parasite species such as Orabankia and Striga, highlight करो. Orabankia and Striga is the parasite plant. Have you seen a tiny seeds of ficus? Ficus यानी अंजीर. एज वेल बनियन ट्री, दोनों का एक ही अपना ग्रुप है, दोनों ब्रदर ही है, बनियन और ये अंजीर ट्री, दोनों को फाइकस ही है, मेन फाइकस. तो बोलो क्या हुआ? ये जो फाइकस है वो तुम ये बनियन ट्री हमारे एग्जांपल है, उसके बदले तुम ये अपने अंजीर पे समझ सको. दोनों का फ्रूट भी सेम आता है, सब कुछ आता है. इन अवर सिटीज मैनी टाइम दोज सेलर फ्रूट, ये द ड्राई फ्रूट सेलर हमको बोलते हैं अंजीर है, बट एक्चुअल में वो अंजीर नहीं होता है, वो बनियन ट्री का फ्रूट होता है. बोलो, ऐसा जो प्रेस होता है, ऐसा राउंड जैसा होता है, उसको ओपन करके देखो, टाइनी टाइनी सीड होते हैं. हाउ लार्ज द ट्रीज ऑफ द फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट ऑफ द टाइनी सीड्स? बोलो, एक में से पूरा ट्री डेवलप होता है. हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज इट फिकस ट्री प्रोड्यूस? कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल इन सच अ टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच अ लार्ज बायोमास? बायोमास मीन्स पूरा स्ट्रक्चर, हमारा पूरी बॉडी हमारा बायोमास है. तो एक टाइनी सीड में से पूरा ट्री बन जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द बायोमास. ओके, सो दिस इज द टॉपिक नंबर 2.4.3. इसकी जो फिगर्स है वो फिगर भी है, और ये दूसरा जो टॉपिक थोड़ा रह गया, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, बेस्ट ऑफ लक.